Welcome to the Monday Manager Show. In today's episode, I speak with Saurabh Rai, who has spent the last 20 years of his career in grassroots education and skilling programs in India. Saurabh shares interesting insights on what it takes for grassroots level programs to successfully scale up and what actually leads to their failure. He also shares some insights for today's young startup founders who are creating companies in the education and skill development area and how they can win the trust of government stakeholders because the government is still in India today the largest player in education and skilling. I also asked Saurabh about how he has managed to retain his passion over this long period of time. I hope you'll enjoy this interview. Saurabh, thank you for agreeing to this podcast, and I am very excited to interview you. And thank you for taking out the time from your busy schedule. Thank you, Raghav, first for inviting me. And I see that uh, the kind of content you are creating and the kind of interactions you are sharing in your uh, podcast is very powerful. And I see this as a great knowledge resource for a lot of professionals like us. And they are people who have helped us in our lives. So I think these podcasts are playing that kind of role in lives of multiple professionals. And that is a very good initiative by you. So it's a pleasure to join you in this discussion. Thank you. Thank you for that. My first question to you, Saurabh, is that you began your career in microfinance, right? In the early 2000s. What was that experience like? Because that was, if I'm not wrong, that was the beginning of the microfinance wave also in India, right? In the early 2000s, and that's when you started your career. So, what was that time period like? What was it like working in the microfinance industry at that time? So राघव इनिशियल 2000 जब करियर शुरू किया द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन आई वर्कड वाज प्लस प्लस माइक्रोफाइनेंस so when I'm saying plus plus microfinance means there was something else prior to microfinance in those institutions and KMVS where I started the career you can say. So KMVS was started on the issues of एक लीगल फॉर फीमेल्स तो एक तरह से महिलाओं के साथ जो उनके लीगल इश्यूज थे घर को लेकर अलग अलग तरह के समाज में उनकी भागीदारी को लेकर केएमवीएस तो शुरू उससे हुआ था माइक्रो फाइनेंस और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब माइक्रो फाइनेंस वर्ड भी बहुत बाद में मेरे को इंडियन कंटेक्स्ट में आया Right. उस समय तो अ, इतना फाइनेंस को लेके बहुत बात नहीं हो रहा था तो वहां पर फाइनेंस वाज ए बहाना आप कह सकते हो कि लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए शुरुआत Right. में Okay. इश्यूज तो लीगल के थे या उनके हेल्थ के थे Hmm. पर लीगल और हेल्थ के इश्यूज के लिए एक एक तरह से एक इकट्ठा हो के जो समुदाय का जो पावर होता है वो कैसे दिखाई दे रहा है वो तो फाइनेंस तो महिलाओं को वहां से उनके घर से बाहर निकाल के इकट्ठा करने का बहाना था समझ गए. Okay. ये काम शुरू किया और महिलाएं वहां से अपने गांव में आती थी 10-10 रुपए इकट्ठा करके करती थी और ये 10-10 रुपए की जो सेविंग थी माइक्रो फाइनेंस बहुत स्ट्रक्चर्ड है देखिए उस समय जो पूरा मॉडल था ना उस मॉडल में फोकस इस पर था कि अगर एक गांव में 200 घर हैं और हर घर में अगर एक या दो महिला है तो 400 महिला एक जगह पे आ रही है एक दिन अब आप विजुलाइज करिए कि अगर एक दिन 10 से 12 बजे के बीच में Hmm. 400 महिला एक दिन में मिल रही हैं तो 10 रुपए देना तो बहाना है बात क्या होनी है कि घर पे उनका हस्बैंड ट्रीट कैसे कर रहा है Right. ना उनके हेल्थ को लेके ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेसिक हाइजीन के हेल्थ के सिस्टम्स कैसे हैं क्या है Hmm. और अगर किसी को जरूरत है कि मेरी बेटी पढ़ेगी या मेरा बेटा पढ़ेगा या मुझे एक बकरी खरीदनी है तो क्योंकि ये पैसा आ रहा है तो उनमें से कुछ लोगों को लोन भी मिल जाएगा माइक्रो फाइनेंस तो बेसिकली ये कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम Right. Understood. And उसमें आपका क्या रोल था?
उस समय? So I was supporting KMVS in designing this whole program of financial part, क्योंकि अब KMVS कच्छ के अंदर बहुत पावरफुल और ये 200 महिलाओं के की जो आंगनबाड़ है, तो फिर ये पॉलिटिकली भी बहुत पावरफुल सिस्टम बन जाता है अगर आप ऐसा विजुलाइज करें तो। राइट। जिन तालुकाओं में इनका प्रेजेंस था, वहाँ बहुत बहुत सॉलिड तरीके से ये काम हो रहा था। एंड फाइनेंशियली इस पूरे प्रोग्राम में सिस्टम्स कैसे होंगे, हम्म। प्रोसेसेस कैसे होंगी, कैसे डिसाइड होगा किसको लोन मिलेगा, वो लोन कब तक वापस कर रहा होगा, किन पर्पस के लिए लोन मिलेगा, कितना उसमें कंजप्शन पर्पस होगा, कितना उसमें प्रोडक्शन पर्पस होगा, वो पूरा एमआई सिस्टम कैसे होगा, ट्रैकिंग कैसे होगी, और उन महिलाओं को 20 तक गिनना आता था सर। समझ गए। तो आप जब उस टाइम। कैसे बिल्ड होगा, तो आई वाज सपोर्टिंग केएमएस इन बिल्डिंग दो सिस्टम्स, दो अंडरस्टूड। तो एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एमआई। sorry to interrupt. So this was the first role you had after leaving college? First So full-time? after leaving college, I joined Rajasthan RUIDP, Rajasthan Urban Infrastructure Development Project. That was my first role. That was a pilot program funded by Asian Development Bank. So that I joined. Understood. And And after that, you joined this one. yeah, but that was a very small duration. Understood. I moved to KMBS because I had done their impact assessment as a part of my summer internship. राइट। सो जब आपने ये रोल ज्वाइन किया था तब आप काफी यंग थे, राइट? तो आप सीधा इस तरीके के माहौल में आ गए, तो आप क्या आपके लिए आसान था अडेप्ट करना इस तरीके के काम को करने में, महिलाओं से इंटरेक्ट करना, उनके लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाना? आई गेस आप कम्युनिटीज में भी काफी टाइम स्पेंड करना रहता होगा इसको करने के लिए। तो ये ट्रांजिशन आपके लिए इजी था? क्या आप पहले रूरल एरियाज में ही पले बड़े थे, या आप शहर से आए थे? कैसा था ट्रांजिशन? तो मेरे रूट्स तो बिहार में है देखिए। ओके। लेकिन पढ़ाई या मेरा रहना बहुत बाहर हुआ बिकॉज ऑफ माई फादर। जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, उनके मल्टीपल ट्रांसफर हुए तो शहरों में जी। हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ बहुत आसान था, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। आप एक मैनेजमेंट कोर्स करके जाते हो, और हम्म। फिर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए। लेकिन काफी पैशन था तो उस पूरे काम को लेकर। कच्छ में जब अर्थक्वेक आया तो लगा कि कुछ तो करना चाहिए, तो वो बहुत पैशन लिड कॉलिंग थी, मैं कहूंगा उसको। ओके। जो कॉलिंग के लेवल पर तो ये समझ में आ रहा था एटलीस्ट उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर मैं वहां पे रह के समझ पाऊं कि काम कैसे होता है, तो मैं भी अपने करियर को देख ऐसे रहा था कि अभी तो 3-4 साल ग्रास रूट में जाके समझना है और सीखना है कि काम होता कैसे है। ओके। तो समझने और सीखने के लिए और वो पैशन को लेके मैं भुज में गया। और जब भुज में गया तो अ, जो उसमें केएमवीएस को हेड कर रही थी सुषमा अयंगर जी एंड अलका जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम नखत्राना, अबदशा, मुंद्रा और खावड़ा, ये 4 ब्लॉक थे, आप वहां जाओ और लोकल ट्रांसपोर्ट से। और फिर उन ब्लॉक में जो और इन ब्लॉक्स को जो लोग जो उसमें आंगनबाड़ी जो उसको हेड कर रहे थे, वो गांव की वो महिलाएं थी। ओके। उस अनुभव ने बहुत कुछ चीजें सिखाई। तो मैं ये नहीं तो बहुत सारा पैशन और आपका जो आत्मा होता है ना, मुझे लगता है कि इसलिए मैं कॉलिंग वर्ड कह रहा हूँ कि वो जो कॉलिंग है, मैं उस कॉलिंग से बहुत लेड होके मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जब मैंने छोड़ा और मैं केएमवीएस गया, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपने दोस्तों ने कहा कि क्या क्या? पागल क्या पागलपना है, मतलब तुम तो एशियन डेवलपमेंट बैंक छोड़ के कच्छ के उस जगह पे जा रहे हो जहाँ तुमने एक समर इंटर्नशिप किया है। एकदम। बट कुछ पागलपना था, मुझे लगता है कि वो पागलपना था उस समय, और पागलपना इंपॉर्टेंट है कि सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आता है। तो दैट एटलीस्ट पुश्ड मी फॉर दैट कॉल। एंड वहाँ आप 2-3 साल थे, 2 साल थे? मैं अप्रोक्स 2 साल था वहाँ। 2 साल। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके करियर का
काफी लंबा था। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में आप थे शायद सो 11 तो साल नहीं? हाँ, तो केएमवीएस के बाद, मतलब केएमवीएस में भी जब मैं था तो मेरी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से बात चल रही थी। बट एक छोटे समय के लिए मैं उर्मूल में गया 5-6 महीने के लिए, ओके। ऑन बेसिकली अगेन माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ बात चल रही थी बट मैं वहां पर उर्मूल में गया। उर्मूल में गया क्योंकि संजय घोष जी का खड़ा किया हुआ इंस्टीट्यूशन है, अगर देखा जाए तो था कभी कि उर्मूल के साथ काम करना और मौका मिला। एंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ ये बातचीत चल रही थी। एंड पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में फाइनली मैं करीबन 12 साल, एक लंबा ड्यूरेशन रहा जहाँ रहा। तो ये है। तो ये बताइए, इतने लंबे समय किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, लाइक आज के जमाने में तो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल कोई काम कर रहा है। तो हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग दैट लॉन्ग टेन्योर? क्या आपका काम इवॉल्व होता रहा, या वाज इट द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग डन अगेन एंड अगेन? कैसा था वहां पे काम जो आप कर रहे थे? आप अपने को कैसे मोटिवेटेड रखते थे उस 11-12 साल के टेन्योर में? तो देखिए, मतलब ये एक तरफ से नहीं होता है कभी भी, मुझे लगता है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम तो इवॉल्व किया ही किया। कोई ऑर्गेनाइजेशन 12 साल तक डेवलपमेंट डोमेन में एक ही तरह का काम कर रही हो, शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीजें बदल रही होती हैं। डेवलपमेंट डोमेन बहुत इवॉल्विंग है। तो काम करने का तरीका या स्वरूप भी बदला, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बदला। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि 12 साल के जुड़ाव में आपके पास बाहर से, मतलब बाजार से मौके नहीं आते हैं, वो भी आते ही आते हैं। पर लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मीनिंगफुल है। वो मीनिंगफुल चीज निकाल पाना, मुझे लगता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी एसोसिएशन के लिए। तो वो मीनिंग मेकिंग होती रही 12 साल तक। अ, और जब कभी ऐसा लगा कि नहीं, कोई गहरे प्रश्न है, तो एक ही सिद्धांत मैंने फॉलो करने की कोशिश की लाइफ में। मुझे लगता है कि जो आपका मैनेजर है वो दुनिया को आपसे बेहतर जानता है। मतलब मैंने मैनेजर जरूर चुने हैं जिंदगी में कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ किसी भी समय पे। चाहे मैं केएमवीएस में गया, चाहे मैं उर्बुल में गया, चाहे मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या कहीं भी गया, मैंने मैनेजर्स चुने। तो मैनेजर्स जो हैं वो एक बड़ा क्रिटिकल, मतलब उन्होंने मेरी जिंदगी में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है। तो जब भी कभी ऐसा लगा, मैं बड़ी ईमानदारी से, जिसको जो मेरा मैनेजर है वो या फिर जो मेरा स्किप लेवल पे है वो, मैं उसके ऊपर कभी जाने की कोशिश मैंने नहीं की। मुझे लगता है कि उनसे बड़ी ईमानदारी से मैंने बात किया कि देखो भाई, सिचुएशन ये है, मुझे ऐसा लग रहा है, और तुम दुनिया को मुझसे बेहतर रूप से समझते हो, तुम क्या सजेस्ट करते हो। क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं जो दुविधा आपके मन में थी, जो आपके मैनेजर ने हेल्प किया आपको रिजॉल्व करने के लिए? मतलब अगर मैं कहूँ तो मैंने 2005 के आसपास अजीम प्रेम 2005 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन किया। 2007 या 8 के आसपास मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आज की जनरेशन के लिए बहुत important, मेरे पास एक ऑफर आया है, अप्रॉक्स मोर देन 70% हाइक ऑफ माई दैट टाइम सैलरी। ओके। और शादी नहीं हुई थी। फैमिली बार बार कहती ये थी, मतलब मेरे पेरेंट्स कहते ये थे कि भाई, आ, तुम कर क्या रहे हो। बहुत सारे लोगों को डेवलपमेंट डोमेन में तुम कर क्या रहे हो समझ में ही नहीं आता है ना। ये तो सच है। मतलब आप एजुकेशन में काम कर रहे हो, तुम टीचर हो क्या, तो मैं बोलता था नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। मैं कहता था कि हम लोग तो तुम टीचर नहीं हो, तुम स्कूल में काम करते हो क्या, हाँ करते हैं। स्कूल में काम करो, टीचर नहीं तो कर क्या रहे हो। तो फैमिली के लिए वो भी एक बड़ा प्रश्न था। और दूसरा कि तुम इतना ही, तुमने मैनेजमेंट किया है तो तुम तो इससे अधिक कमा सकते हो ना, बिकॉज मेरे पीयर सर्किल में सब लोग तो इससे अधिक कमा रहे थे। तो एक ऑफर आया मेरे पास और मुझे लगा कि भाई, और फैमिली अगर कह रही होती है, मतलब खासतौर से, मतलब माँ बाप हम सबकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कि चलो, और मैंने बताया कि ऑफर है, तुमने कहा चले जाओ, जब है तो क्यों नहीं जा रहे हो। सो आई, एंड आई वाज इन डिलेमा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो लाइफ में मल्टीपल, तो आई थॉट आई शुड गो एंड टॉक टू माई मैनेजर कि भाई ये है,
और ऐसे और क्या करना चाहिए। तो रात को 8:30 से 10 बजे तक का हमारा एक घर के बाहर उनके रास्ते पर चलते हुए एक टॉक, मतलब मुझे लगता नहीं कॉर्पोरेट में होता है, पर मुझे लगता है ये इस तरह के टॉक्स किसी यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जो आज हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ पीपल वर्क विद मी इन दिस डोमेन। सो ये टॉक उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पैसा मिल सकता है और इम्पोर्टेंट है, जाने जा सकते हो, और जो तुम काम कर रहे हो वो काम अच्छा है। एंड देन उन्होंने कहा कि देखो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम कुछ लैंग्वेज के बहुत फाउंडेशनल चीजों पे इस कंट्री के लिए काम कर रहे थे। मतलब अगर मैं कहूँ, वो अभी जाके पॉलिसीज में आ पाई हैं। उसको हम लोग 2007-8 के आसपास कुछ टेस्ट करने की कोशिश करते थे उस शुरू से। तो उन्होंने बताया कि देखो, मीनिंग मेकिंग ये चॉइस तो तुमको लेनी है। उन्होंने कुछ डिसीजन तो नहीं दिया, बट उन्होंने दोनों चीज दिखाई है। मुझे लगा कि ये मीनिंग मेकिंग इंपॉर्टेंट है और सीखना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि 2007 से लेकर 10 तक जो मैंने काम किया, मैंने उस काम को 14-15 में लिखने लिखा उसके बाद। पर अगर मैं मूव कर पाता तो करियर कुछ और बनता। मैं भी जहां हूं वहां कुछ हो गया, पर गहराई तो आई। तो मैनेजर्स ने कई बार मुझे गहराई में जाने के लिए डायरेक्शन दिया, अलग अलग समय पे, और लाइफ में वो एक बार से अधिक दिया। और मुझे लगता है फायदा इसमें ये समझने, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए इस चीज ने वर्क किया कि गो एंड टॉक टू योर सुपरवाइजर, वेरी ऑनेस्ट डिस्कशन करो, बताते हैं कि रास्ते कैसे निकलते हैं, क्या निकलता है, डिसीजन तो अल्टीमेटली तुम्हें ही लेना है। लेकिन अगर आप उस पर यकीन कर लोगे तो भी लॉन्ग टर्म में करियर बनता है और कायदे से बनता है। मेरे लिए ये वर्क किया, मेरा ये की वो है। सिमिलरली व्हेन आई वेंट टू अनदर इंस्टीट्यूशन आफ्टर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, मैं नाम ले भी सकता हूँ पिरामल के लिए। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मुझे आदित्य और मनमोहन, मतलब जो वहाँ पे क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा कि यू शुड गो एंड मैनेज दिस होल प्रोग्राम इन झुंझुनू। एंड बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन था। मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम दे वर सेइंग यू मूव टू ए स्टेट, एंड सब कुछ बन चुका था। उस डिसीजन के एक दिन पहले शाम को बोल रहे कि नहीं, हमें लगता है कि तुमको उस स्टेट में ना जाके तुमको इस जगह जाना चाहिए, बिकॉज वो बेहतर काम करेगा तुम्हारे लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और डेवलपमेंट डोमेन के लिए भी। एंड दे शेयर देयर लॉजिक। होशंगाबाद जैसा एक बड़ा नाम है, मतलब वो कि उन्होंने कहा कि तुम झुंझुनू जाओ जहां से हम शुरू हुए हैं, और वहां पे जाके सेकेंड फेज ऑफ पिरामल फाउंडेशन डीएसटी को बिल्ड करने की कोशिश करो। और मैं एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम को मैनेज कर रहा था। लेकिन वो जो, मतलब जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम था, डीटीपी, उस प्रोग्राम की समझ ने अगले 4 साल और उसके बाद के मेरे पूरे फ्यूचर करियर डिसीजन को बहुत डिफरेंट तरह से चेंज किया, पॉजिटिव तरीके से। तो लाइफ में से एग्जांपल्स हैं, और मैं इसमें यकीन करता हूँ, जब भी फंसिए मेरे पास जाइए, ये है, बात करिए, एंड मूव अहेड। उसमें एक लक का भी रोल होता है ना कि आपके पास उस तरीके के सपोर्टिव मैनेजर्स रहे जो आपको उस तरीके से गाइड कर पाए। सबके पास तो उस तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाता है। तो मतलब जो, जिसको आप लक कह रहे हो, मेरे इसलिए मैंने पहले कहा कि मैनेजर को चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट वो कैसे चुनते हैं? अब मैं लिंक्डइन पे भी काफी देखता हूँ, लोग बोलते हैं ऑलवेज सेलेक्ट योर बॉस। एनी टिप्स कि कैसे सेलेक्ट करें मैनेजर? है। तो एटलीस्ट देखिए, कई बार आप जब नया ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो चुन सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तब नहीं चुन सकते हैं। इसका एक सीमा तो ये है। हम्म। तो आप जा रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ठीक है, टू whom टू विद आई विल वर्क विद। और फिर अगर आपका नेटवर्क है तो आप पता कर सकते हैं कैसा है, क्या है, कितना स्पेस देता है। क्योंकि किसी को भी कुछ बहुत फंडामेंटल चीजें जो लोगों को पसंद है, मुझे लगता है लोग, सभी लोगों को ये पसंद है कि उन्हें काम करने में एक बेसिक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस मिले, उन्हें एक बेसिक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी मिले, कि टीम्स को वो बिल्ड कर रहा है,
कितना स्पेस दे रहा है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो आप शायद कुछ चीजों को पर वर्कआउट कर सकते हैं। ओके। उसके पास्ट में जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या है। हम्म। उसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट हो रहे हैं, सिस्टम में घुस गए, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। कई बार नहीं भी कर सकते हैं, बट जब कर सकते हैं तो थोड़ा अवेयर हो। और फिर ये बहुत म्यूचुअल होता है। देखिए, ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ता है किसी के साथ, ट्रस्ट डे वन से बिल्ड होता नहीं है। तो मुझे भी बदलना पड़ा है, ऐसा नहीं कि मैं डे वन से सभी के लिए वैसा ही हूँ। हम्म। भी बदलना पड़ता है। और शायद थोड़ा मेरा मैनेजर भी मेरे लिए जस्ट तो करता ही है सब कुछ। ना मैनेजर आ रहा होता ना मुझे आ रहा होता, ऐसा नहीं होता कभी राइट। कि हम आइडियल लाइफ में जी रहे हो। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इंसान है तो मेरे अंदर भी दो कमियां हैं, उसके अंदर भी दो कमियां हैं, मेरे अंदर भी दो खूबियां हैं, उसके अंदर भी दो खूबियां हैं। और हम इंसान के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप इतनी मेच्योरिटी और इतना ओपननेस दिखाते हैं तो सामने वाला भी ओपन तो होता है। आप कह सकते हैं कि आ, कुछ तो भला किया होगा तो मुझे अच्छे मैनेजर मिल गए, लेकिन हर बार ही क्यों मिल जाएंगे। ये भी तो एक बात बनती है ना। हम्म। जिंदगी भर तो नहीं मिल जाएंगे 20 साल तक ना। राइट। ऐसा नहीं होता। हम्म। तो तो मुझे लगता है कि जब आप चेंज कर रहे हैं तब जरूर ध्यान दीजिए। फिर उसके अंदर एक बार चले गए, फिर तो बड़ा डिफरेंट तरह का डायनामिक्स है। एंड अब आपको इतने साल हो गए हैं इस सेक्टर में, अब आपका खुद का काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपने जब शुरू किया था, और अगर आप अपने आप को आज देखें, तो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, आपने अपने अंदर क्या बदलाव पाया है? हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अधिक स्ट्रक्चर्ड हो गया हूँ इन टर्म्स ऑफ एज लीडर। जिम्मेदारियां आपको थोड़ा स्ट्रक्चर होना सिखाती भी हैं। हम्म। तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया हूँ। स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब टू स्टार्ट विद वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग। डेली का शेड्यूल क्या होगा, वो शेड्यूल में आपको आप उसको फिर आवरली प्लान कर लेते हो। इस दिन में फंडामेंटली क्या चार चीजें करनी ही करनी है। ये मैनेजमेंट में सिखाते हैं। देखिए, हम करते हैं क्या, मतलब सिखाना और जिंदगी में उतारना ये दो अलग अलग बातें हैं। जमीन आसमान का अंतर होता है। तो तो एज जब आप इस तरह की भूमिकाओं में अगर मैं आ हूं तो मैं बाकायदे मेंटेन करता हूँ कि डायरी में मुझे क्या क्या करना है। कहने की छोटी बात है पर बड़ी बात है। उसका हर आवर का प्लान होता है, चीजें प्लान होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर और प्लान मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोगों ने सिखाया है, मदद किया है। आज जहां मैं हूँ, सुनने की कोशिश करनी है। और लोगों को तो सुनने की कोशिश करना ये इतना आसान है नहीं। अ, तो तो वो बदला है। मुझे लगता है कि पेशेंस को बढ़ाना है, ये बदला है। आपको किसी भी मीटिंग में जाने से पहले तैयारी करनी है, और तैयारी करने का अलग से समय निकालना है, हम्म। ये बदला है। तो ये जो आधारभूत चीजें हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने काम को। आपके काम में कहानी इंपॉर्टेंट है, और उस कहानी को में बेसिकली डेटा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बदला है। और ये अ, बहुत सारे लोगों ने साथ में काम किया है, इसलिए बदला है, जो मेरे से बेहतर चीजों को समझते थे। तो मैं बहुत आधारभूत बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत जार्गन से बात नहीं कर रहा हूँ। ये आधारभूत चीजें बदलना काफी हेल्प कर रही होती है। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है। आप जब मैं लॉन्ग टर्म सोचना ही कह रहा हूँ, तो आपको तो 3 साल 2 साल का प्लान करना है। ये बदला है। ये शायद अगर मैं कहूँ 2005 7 10 तक भी था क्या, तो शायद नहीं था। हम्म। ये बेहतर हुआ है। और कुछ चीजें, मतलब इसमें भी कुछ चीजें थी जिसको कंटिन्यू रखा है, जैसे पैशन। मुझे लगता है वो पैशन तब भी था, वो पैशन अभी भी है। वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैसे देखिए, कैसे उसको कंटिन्यू रखते हैं? क्योंकि कई बार, और खासतौर से डेवलपमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो काफी समय ऐसी भी सिचुएशंस देखते हैं जहां जिस तरीके का या जिस लेवल का काम और सपोर्ट होना चाहिए ग्रास रूट्स पे नहीं होता है। कई प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं,
नॉट ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट बट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। एंड ऐसे कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आप वो पैशन की जो आग है वो कैसे जलाए रखते हैं इतने सालों में? मुझे लगता है कि जो पैशन है वो बहुत अधिक फील्ड से आता है, वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट काम नहीं करता। देखिए, तो एक चीज जो मैंने कंटिन्यू मैं कर पाया, एंड अगेन थैंक्स टू माय मैनेजर, मैं पिछले 20 सालों से अधिक हर महीने में कम से कम 2 वीक तो ट्रेवल करता ही करता हूँ और जमीन पे रहता हूँ। आ, तो फील्ड पर रहना, लोगों से मिलना, उनको सुनना, उनको समझना, आ, आपके अपने अंदर बहुत शालीनता लाता है। वो ये भी लाता है कि जो हम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और वो जो कहानियां हैं ना, वो बचाए रखती हैं, मुझे लगता है। आप जितना फील्ड से दूर होते चले जाते हो उतना ही ये मरता है। तो एक ये चीज जो मैं कर पाया, और मैं किसी के लिए भी, मतलब मेरी अपनी पूरी टीम्स में मैंने जहां भी काम किया, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी हो 50% टाइम तो उनके साथ देना है जहां जिनके लिए आप काम कर रहे हो, और वहां पे रहना है, फिजिकली रहना है। हम्म। और वो फिजिकली उनके साथ रहना, उनको सुनना, उनके साथ काम करना, मुझे लगता है कि उससे ये पैशन बचा हुआ रहता है। और उसके बाद पढ़ना, ये जो अपने प्रोफेशन के बारे में कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। और वो पढ़ने से तरह का पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है। तो मैं पर्पसफुली कोशिश भी ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ चीजें पढ़ पाऊँ कि क्या काम कर रहा है। बहुत सारा इस तरह की काम नहीं कर रहा है, वो तो आप चुन रहे हो ना, आप क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे बन रहे हो, क्या सुन रहे हो। तो वो सिलेक्शन तो एक वाइज सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को बचाए रखने की लड़ाई भी तो आपकी अपनी ही है ना, राइट। कोई और तो नहीं बचाएगा। हाँ, ये इस पॉइंट पे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि खासतौर से ये डेवलपमेंट सेक्टर में फ्रस्ट्रेशन भी कई कई बार हो सकता है। प्रोग्राम्स नहीं चल रहे या जिस तरीके का इम्पैक्ट हम लाना चाह रहे हैं वो नहीं ला पा रहे। तो वो फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील करते हैं आप? क्या आपके साथ वैसी सिचुएशंस होती हैं जहां आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि ये प्रोग्राम जैसा मैं सोच रहा था इम्पैक्ट लाएगा या जिस तरीके से चलेगा उस तरीके से नहीं चल रहा है? तो उन सिचुएशन से कैसे डील कर? देखिए, मतलब दो चीजें हैं जो जो भाई मैं कहूँगा, ड्यू टू द अपॉर्चुनिटीज विच आई रिसीव, ठीक है, जो मुझे करने का मौका मिला। एक तो किसी भी तरह का बदलाव एक तरह का पेशेंस चाहता है। ये क्विक नहीं है, मतलब हम कोई किसी को क्रोसिन नहीं दे रहे हैं, क्रोसिन दिया और बुखार उतर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो ऐसे विजुलाइज कर रहा है, अगर कोई ऐसे विजुलाइज कर रहा है, तो आई प्रीफर टू इंगेज विद दैट काइंड ऑफ पर्सन की भाई ये क्रोसिन तो नहीं है। तो अभी निगोशिएशन इस पार्ट में है कि कितना हो पाएगा और कितना नहीं हो पाएगा। हम्म। वो निगोशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, और बहुत बार एज ए नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर मल्टीपल तरह के प्रेशर्स होते हैं, स्टेट के मल्टीपल तरह के प्रेशर हो सकते हैं, डोनर्स के, और किसी इंस्टीट्यूशन को उसके बीच में काम करना होता है। वो प्रेशर्स इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो आपको एक तरह की स्पीड में लेकर आते हैं। लेकिन उसके माइलस्टोन्स को, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को प्रॉपर्ली डिफाइंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सेंस ऑफ अचीवमेंट बना भी पाओ और बता भी पाओ। राइट। तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपके आपके लिए, हम्म। इसको और डिकोड करने के लिए। से किसी स्टेट को अ, किसी स्टेट में एक प्रोग्राम चल रहा था जहां पे एनुअल असेसमेंट के बाद सिचुएशन ये थी कि अ, पहले साल में
कोई स्कूल ऐसा नहीं था जो अपने 80% बच्चों को ये बोलता हो कि वो 60% का कॉम्पिटेंसी लेवल प्राप्त कर लिए। ओके। अब किसी भी स्टेट के स्कूल सिस्टम के लिए, मतलब एक क्रॉस स्टेट एक सिंगल स्कूल भी ऐसा नहीं है जो ये बोल रहा है कि वहां के 80% बच्चे 60% कॉम्पिटेंसी का लेवल प्राप्त कर लिए। ये एक बहुत प्राउड वाली बात तो नहीं है। और जब किसी स्टेट में ऐसा हुआ होगा तो वहां पे स्टेट में ब्यूरोक्रेसी भी हिल गई होगी, ऐसा कैसे हो गया। हम्म। So, in the second year of that work, we thought of to support schools through a school preparedness program. Okay. And स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम का पहला साल क्या था? पहला साल ये था कि ये एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में तीन चीजों पे बात की गई थी: इनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड लर्निंग लेवल। हम्म। इनरोलमेंट कितना हुआ, अटेंडेंस कितना हुआ, बिकॉज पूरे कैप्चर करो, लर्निंग लेवल क्या है, सिचुएशन क्या है, जो लर्निंग लेवल के जो वीक एरिया है उस पर काम कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर ऑफ दिस होल थिंग, दिस स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान रीच टू एवरी स्कूल में जो वो, मतलब वहां पे जो टीचर है वो ये जानता हो कि जो नीले रंग की किताब है ना, इसको बोलते हैं स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान। अभी भरा है या नहीं भरा ये बात नहीं की हमने, राइट। सबके पास पहुंच जाएगा वो। और लोग देखेंगे तो कि डॉक्यूमेंट दिखाई ऐसा देता है, हम्म। समवन कैन से कि आप फेल हो गए, भाई भरा ही नहीं है ना। या। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस इज कि ये हर जगह पहुंच गया है और लोगों ने देख लिया है। और अगर आप किसी से बात करोगे भाई स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान है क्या, हाँ सर वो जो नीले रंग की किताब है ना वो स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान है ईयर वन। अभी हम भरने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम्म। एजम्पशन क्या है, जब पहुंचा होगा और कुछ ट्रेनिंग हुई तो लोगों ने भरा भी होगा। अभी कैसा भरा क्या भरा नहीं बात कर रहे हैं। ईयर टू ये स्कूल प्रिपेयर पहुंच गया दोबारा से, नीली किताब थी, उन लोगों ने भर लिया। भरने में कंटेंट सही है या खराब है या क्या है नहीं पता, लेकिन भरा सबने है। ईयर थ्री स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान पहुंच गया, लोगों ने भर लिया, जो कंटेंट बड़ा भरा है और जो कॉम्पिटेंसी पे काम है उस पर काम करने का तरीका सही से भरा है। ईयर फोर क्लासरूम में कुछ हो रहा है जो उसमें लिखा गया है वैसा। हम्म। अब आप ईयर फोर को अगर ईयर वन में ट्राई करोगे आके तो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन। खासतौर से जब आप इतने लार्ज सिस्टम से डील करते हैं। तो मैं स्टेट किस लिए मैं कह रहा हूँ, स्टेट को विजुलाइज कर हम्म। लीजिए। और अगर ये स्टेट एक बड़ा स्टेट है तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो एकदम। लॉट ऑफ स्टेप बाय स्टेप सक्सेस डिफिनीशन, कि आपने डिफाइन ही ऐसे क्या सक्सेस होगी, पहुंच गया तुम पहुंचा दो बस। पहुंच गया, लोग रंग पहचान गए, एक बार उन्होंने बैठ के पढ़ लिया, सिस्टम में कुछ तो वो कर रहा होगा पढ़ने के बाद ना, थोड़ा उस पर ट्रस्ट कर लो। लेकिन गोल है कि हाँ 4 साल लगेंगे जमीन पे उतारना है तो ये जो पेशेंस है, ये जो उसके बैकग्राउंड की प्रिपरेशन है, और फिर हर साल उसको परसू कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। और इन सबके बीच में आपका जो पॉस्चर है ना, कि हमें आप पर विश्वास है कि आप ये कर लोगे, ये 4 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के। ये बताइए, इस जिस तरीके के प्रोग्राम का आपने एग्जाम्पल दी, अब ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि जब इतने बड़े सिस्टम्स में आप काम कर रहे होते हैं तो चेंज जो है वो तुरंत आता नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बट उस प्रोसेस के दौरान अलग अलग स्टेक होल्डर्स को आप कैसे उनको मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड रखते हैं? क्योंकि कई बार होता क्या है कि इट कैन इवन बी फ्रॉम द डोनर साइड और इट कैन इवन बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड अदर्स, बिकॉज दे आल्सो नीड टू शो प्रोग्रेस। उनके भी खुद के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो वो रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करते हैं?
इस तरीके के लंबे प्रोग्राम्स? सो दो चीजें देखिए कि पूरा स्किल, दूसरा है पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन। आप कई चीजें टेस्ट भी कर रहे होते हो। तो ईयर ऑन में सब जगह पहुंच गया, लेकिन अब मुझे पता है कि ये वो 10 स्कूल है जहां भरा भी गया। वहां शायद हम करके देख भी रहे हैं, पायलट भी कर रहे हैं कि ये हुएबल है या नहीं है। सो आप अपना मीनिंग मेकिंग इस डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। आपको डिमॉन्स्ट्रेशन को थोड़ा वाइजली सिलेक्ट कर लीजिए। उस डिमॉन्स्ट्रेशन का परसेंटेज क्या हो, मतलब हम लोग सैंपलिंग करते हैं ना रेंडम, निकाल लीजिए। देखिए स्केल के साथ तो आपको समय देना और पेशेंस रखना पड़ता है। तो जैसे वो जो स्टेट था हमने कहा वहां पे ठीक है, हर जिले में एक स्कूल होगा ऐसा जहां ये भरा भी होगा। बाकी लोग को वहां बुला के ले आएंगे, देख लो भाई ये होता कैसे, भरते कैसे हैं, क्योंकि दिखेगा तो समझ में आएगा। और फिर आप वहां पे चीजों को कर रहे हैं। एंड जो भी स्टेट ऑफिशियल्स हैं उनको बोला कि देखिए, अगेन पहला साल तो ये है कि पहुंच गया है, लोगों ने कुछ भर भी लिया होगा, लेकिन क्लियर है ये कि इट विल टेक सम टाइम, इट विल। और स्टेट भी ये बात समझती है कि सही से चीजों को करने में समय लगता है। अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरीज ये नहीं समझते हैं तो ऐसा नहीं है, वो हमसे बेहतर होते हैं कई चीजों को समझने को लेके। तो ये बात तो वो भी समझते हैं कि तो बहुत स्ट्रेट कि ये इतने परसेंट पे पॉसिबल है, इतने परसेंट पे हो पाएगा, बाकी जगहों पे पहुंच जाएगा और बाकी जगहों पे इस तरह से होंगी। बट समय लगेगा, और एंड एवरीबडी नोज कि लर्निंग लेवल इंक्रीज करना आसान काम नहीं है। अगर होता तो ये देश तो पिछले 40 साल से ट्राई कर रहा है, 80s के बाद से ट्राई करता ही नहीं ना। बच्चे स्कूल आ जाएं, अटेंडेंस बढ़ जाए, पढ़ना आ जाए। कई सारी स्टडीज की उनको मल्टीपल ईयर्स हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ तो हमको थोड़ा पेशेंस और स्ट्रक्चरल अप्रोच फेज्ड मैनर में रखना पड़ता है। तो ये काफी हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को भी, उनकी मीनिंग मेकिंग के लिए कि ठीक है हम वहां दिखाई दे रहा है तो पॉसिबल है। एंड आफ्टर दैट वो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरे के पूरे मॉडल में उनके साथ प्रोसेस को और इवन आइडिया को को क्रिएट करना पड़ता है। तो उनको डे वन से इंगेज करिए प्लान के अंदर, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, तो ओनरशिप बनती है और Right. चीजें ये मैनेज होती बताइए, अब एक चीज होती है कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, ऐसे नॉन प्रॉफिट में काम कर रहे हैं जो जिसके पास कुछ बॉडी ऑफ वर्क है शो करने के लिए। मतलब हो सकता है कई सालों से कर रहे हो वो लोग इस डोमेन में काम, या पहले कई प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुके हों। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के साथ मिलके। बट आज के टाइम में कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं, दे आर वर्किंग ऑन challenges लाइक बेटर एजुकेशन, बेटर स्किलिंग वगैरह। राइट, कई सारे नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसेस बना रहे हैं अराउंड दीज इश्यूज। अब इस तरीके का कोई यंग स्टार्टअप जिसने पहले कभी गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं किया है, राइट, उन उन उनके लिए कभी कभार काफी ओवरवेलमिंग लगता है कि ये गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे एंगेज करें, कैसे अपना आइडिया शेयर करें कि नहीं हमारे पास एक आइडिया है जिससे आपका, मान लीजिए स्कूल ही है तो स्कूल बेहतर तरीके से चल सकता है, या ये स्पेसिफिक चीज इंप्रूव हो सकती है। तो एनी टिप्स एंड सजेशंस फॉर सच यंग स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स की गवर्नमेंट के साथ कैसे एंगेज करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी ना जो ये कनेक्ट विद द कम्युनिटी है, उनका जो भी कम्युनिटी, उनका कम्युनिटी अगर स्टूडेंट स्टूडेंट, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स, या कोई भी, जैसे एमएफआई है तो एमएफआई के लिए जहाँ भी एसएचजी होगा, तो जो उनका जो भी उनका कम्युनिटी है या जो भी उनका सेगमेंट है, जो उनका फोकस एरिया है, एक वहां पर अगर वो कुछ मॉडल बिल्ड कर पाते हैं बॉटम अप अप्रोच में, तो बिल्ड करके किसी भी डिपार्टमेंट या स्टेट लेवल को दिखा सकते हैं, स्टेट का विश्वास बनता है उससे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है जो कि आप टॉप डाउन जाएं।
गो एंड मीट द, मतलब हमारे केसेस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैं कह सकता हूँ, हम्म। अगर ये आइडिया हमको क्लिक कर गया तो दे कैन गिव यू कि तुम यहाँ जाके करके देखो। बट द की प्रिंसिपल इज करके देखना। कोई बोले कि बिना मेरे को किए हुए कोई स्टेट सपोर्ट करती, मुझे लगता है कि स्टेट भी बहुत अवेयर हो गई है इन चीजों को लेकर। वो बहुत आउटकम फोकस्ड बात करने लगी है। ये शायद 20 साल पहले नहीं था। हम्म। तो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, तो शुरुआत में बोलेंगे ठीक है आइडिया अच्छा है, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से दिन भर में मिलने बहुत सारे लोग आते हैं ना। तुम तो ये बताओ तुमने कहीं करके देखा है कि, अगर आप बोलोगे नहीं देखा है तो बोलेगा जाओ करके देखो। तो स्टार्टअप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पायलटिंग सिचुएशन, वो जो पायलटिंग ग्राउंड है, वो पायलटिंग ग्राउंड अगर कहीं है और वहां पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो स्टेट का विश्वास बनता है, देन दे कैन टॉक टू सीनियर ऑफिशियल्स इन स्टेट। एंड स्टेट्स काफी ओपन होती हैं स्टार्टअप्स के लिए, अगर वो स्टेट में कुछ करना चाहते हैं इस तरह का काम, इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो तो, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेट से, मतलब अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो डिफरेंट तरह की हम्म। ट्रीटमेंट है। अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है तो ट्रीटमेंट थोड़ा दूसरे तरह का है। तो Right. स्टेट्स भी ओपन होती हैं, फिर वो आपका पर्पस, आपका अलाइनमेंट विद देयर प्लान, ये देखिए तो थोड़ा पॉलिसी स्टेट के प्लान से लाइन होते हुए अगर हम चीजों को बिल्ड कर पाते हैं विद टॉप ऑफिशियल्स, तो चीजें बिल्ड होती हैं। अंडरस्टूड। एंड पिछले 20 सालों में लाइक आपने अपने स्पेसिफिक डेवलपमेंट सेक्टर की नीश जो आपका रहा है ऑन एजुकेशन स्किलिंग, इसमें क्या बदलाव नोटिस किया है? ये सेक्टर में क्या चेंज आया है? तब कैसे होता था और क्या सिचुएशन थी और आज कैसी है? तो अ, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ कि 2000 के आसपास ये डोमेन कैसा था और 2025 के आसपास ये डोमेन कैसा है, अ, मुझे लगता है कि काफी, जो मैं कह रहा हूँ ना, पैशन और आत्मा, मुझे लगता है कि वो वहां पे थी, कि बहुत सारे लोग मोटिवेशन या किसी पर्पस के कारण यहाँ पे आ रहे थे। वो कम्युनिटीज में काम करना चाहते थे। अ, और और मुझे लगता है कि अ, अभी विद मोर फाउंडेशंस, मोर सीएसआर, उसका फायदा ये हुआ है कि फाइनेंसेस काफी इस सेक्टर में आ गए हैं। देखिए फंडिंग जो है 2000 की अपेक्षा भी बहुत बेहतर हो गई है, अगर हम कहें तो मुझे लगता है तो 25 लाख करोड़ जो है के प्रॉक्स कुछ इस डोमेन में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो वो मोटा मोटा कुछ 8.3% ऑफ आवर जीडीपी, ये कुछ ऐसा सिनेरियो है अभी के समय में। 2000 में तो ये बहुत कम था मुझे लगता है। तो फाइनेंसेस बेहतर हो गए हैं, पीपुल की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट तो बेहतर हुई है, लेकिन जो पर्पस और पैशन और आत्मा है ना, शायद वो विद समय थोड़ा कम हुआ है। और ये मार्केट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है इस समय, इसके रोल को, इस तरह के रोल को प्ले करने के लिए। सीएसआर पॉलिसी जब से मैंडेटरी हुई है, उसका फायदा तो हुआ बहुत सारा इन टर्म्स ऑफ सेक्टर का एक्सपेंशन, हम्म। लेकिन मल्टीपल और तरह के की डाइवर्सिटी बढ़ी, उसका अपना फायदा है डाइवर्सिटी को बढ़ने का। लेकिन इस डोमेन में मेरा अपना, आप बायस्ड अप्रोच कह सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बार आपको उस पैशन से ऑपरेट होना पड़ता है, उस मोटिवेशन से ऑपरेट होना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम ग्राउंड में बहुत रूटेड है। तो
तो वो एक वो एक पार्ट रहा है जहां मैं देखता हूँ। कॉमेडी कनेक्ट बहुत डीप था। अभी बहुत सारे लोग स्ट्रीट के साथ काम करते थे, जैसे आपने कहा ना। ऐसे मॉडल्स क्या होंगे, 20-30 मॉडल कंट्री में जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। हम्म। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप तो बेहतर हुआ है, पर इंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करना इज नॉट अबाउट सोशल सेक्टर। इट इज मच डिफरेंट देन दैट। हम्म। या एग्रीकल्चर में कोई एक इंटरप्रेन्योर बन जाना इज नॉट अबाउट सोशल सेक्टर, इट इज वेरी डिफरेंट देन दैट। तो इस डोमेन में जिस तरह की चीजें हो रही है उसमें लोग सीधे राज्य पे काम करना चाहते हैं। रूट पे जाके काम करने का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा कम हुआ है। पैशन का ड्रिवन थोड़ा कम हुआ है। मैनेजमेंट में को थोड़ा भी बेहतर मिला है। पहले फ्रेमवर्क्स बहुत फ्लेक्सिबल थे। विद विद दिस होल CSR कमिंग, फिलोसफी कमिंग इन दिस डोमेन, ये फ्रेमवर्क्स जो है थोड़े फिक्स हुए हैं। हम्म। तो फ्लेक्सिबिलिटी कभी अच्छी है, कभी ये फिक्स होना भी अच्छा है, तो दोनों का अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लोकल एक्सपेरिमेंटेशन का स्पेस पहले बहुत ज्यादा था, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये 0 और 100 पे नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बदला है लोकल एक्सपेरिमेंटेशन का स्पेस। इंटरनेशनल सपोर्ट फाइनेंस के फॉर्म में कहा जाए तो बढ़ा भी है, लेकिन देर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम नहीं भी करते जो उसमें काम करते थे, बड़े नाम कुछ। राइट। तो वो भी एक बड़ा क्रिटिकल बदलाव है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास, और वो फिर वो मूव आउट करता है, तो चैलेंजेस बनते हैं इस डोमेन में प्रोफेशनल्स के लिए। तो तो वैसा कुछ रहा है। राइट बेस्ड अप्रोच पे पहले काम ज्यादा था। मतलब हम्म। जैसे मैंने ही कहा कि मैंने जहाँ काम शुरू किया वो प्लस प्लस माइक्रो फाइनेंस था, मैंने ये मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कह दिया। ठीक है। उस समय कहते तो भैया, तो बेसिकली लीगल इश्यूज पे काम करना राइट, मतलब महिलाओं का ये अधिकार था। तो फंडामेंटली इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था महिलाओं के अधिकार से। अभी राइट बेस्ड कितने नए इंस्टीट्यूशन है जो बात कर रहे होते हैं। तो वो बदला है। वॉलंटरिज्म मुझे लगता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब अर्थक्वेक आया था, मतलब अर्थक्वेक ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया मेरे इस डिसीजन को कि भाई मैं कच्छ में जाकर काम करूंगा एक मैनेजमेंट किया हुआ व्यक्ति। तो वॉलंटियरिज्म का नेचर बहुत दूसरा है। और अभी वॉलंटियरिज्म का नेचर बहुत दूसरा है कि कोई इंपॉर्टेंट है, कोई CSR आएगा, वो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए स्टूडेंट्स के साथ इंगेज होगा या कहीं पे पेंट करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँ नेचर बदल गया वॉलंटियरिज्म का। तो पार्टनरशिप में स्टेट्स बहुत डिफरेंट तरह के प्रश्न करते थे पहले। अभी ये बहुत आउटकम जो अच्छा हुआ मुझे लगता है, स्टेट बहुत अवेयर हुई है। और ये काफी एक अच्छा बदलाव है कि वो अभी आपको बेसिकली आउटकम के लिए डिमांड करती है, और ये कहती है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर। ऑपरेशनल प्रेशर शायद बढ़ा है पहले की अपेक्षा। मतलब बहुत FCRA के रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो पहले शायद वो कम था, अभी वो बेहतर हुआ है। कॉस्ट को लेकर NGOs अधिक अवेयर हुए हैं। राइट। कॉस्ट को चीजों को लेकर बहुत तरह के नए नेटवर्क्स बने हैं जो अब हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हैं। जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नेटवर्किंग के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करते हैं, चर्चा वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। राइट। तो चीजें बदली, काफी बदली गई हैं अब तो 20 सालों में। ये बताइए कि अब इतने साल बाद अगर आपको वापस अपने यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने रूरल मैनेजमेंट किया था, वहाँ जाके अगर एक क्लास पढ़ानी हो एंड वो क्लास का टॉपिक है हिडन ट्रूथ्स अबाउट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट इन द एजुकेशन एंड स्किलिंग सेक्टर, तो वो क्या हिडन ट्रूथ्स होंगे जो स्टूडेंट्स को आज की तारीख में बताए नहीं जाते हैं मगर अब आप बता सकते तो मुझे लगता है कि एक ट्रुथ तो ये है कि बदलाव में बहुत सारा काम
खुद पे करना पड़ता है, ये तुम्हारे खुद का बदलाव है एज ह्यूमन बीइंग। मतलब हम मैंने जो भी कुछ करने की कोशिश की सिस्टम में, स्केल पे, सिस्टम और स्केल का बदलाव बाहर तो बाद में आता है, पहले तुमको अपने साथ करना पड़ता है। ये तुम्हारी इनर जर्नी है। और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ाए जाते हैं हमारे मैनेजमेंट कॉलेज में। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जो शायद इंडियन फिलोसफी और फिलोसफर से भी इम्पैक्टेड। तो बाहर बदलाव करने की जगह पे पहले खुद में बदलाव, और जो मैंने कहा कि फंडामेंटल बेसिक बेसिक चीजें हम्म। हैं जिंदगी जीने के तरीके में, अ, आपकी चॉइसेस क्या क्या हैं, उसके अंदर आप कितनी देर पंखा चलाते हो, इसके अंदर अ, मतलब ये ऊर्जा बाकी लोग थोड़ी बचाएंगे, हम भी तो बचाएंगे ना। राइट। तो ये सारे चेंजेस बहुत सारे इनर चेंजेस हैं, और बहुत कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं भी है। तो वहां पर आप अपना अपना रोल प्ले कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा, एटलीस्ट जब हम लोग ने पढ़ाई की तो हमें कुछ सिस्टम चेंज ऐसे कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो करते करते सीखा और समझा। तो उस पूरे के पूरे स्केल पर जब चीजों को कर रहे हैं तो मीनिंग मेकिंग कैसे करें, और कैसे इन बदलावों को अपने अंदर लेके आता है, मुझे लगता है कि वो एक काफी हिडन सी बात है जिसपे हमारे समय में कोई बहुत बातचीत नहीं हुई। हमारे समय तो बदलाव मतलब तो यही रहा कि ठीक है, आप इस मोटिवेशन इस पैशन के साथ जाइए, कूदिए, देखिए, करिए, और पीआरए और ये करके समझ बिल्ड करिए। तो वो अनुभव है जो कुछ शेयर करना चाहूँगा। एंड आज की तारीख में जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो अब आगे आने वाले सालों में आपने क्या प्लान कर रखा है? किस डायरेक्शन में आपको लगता है कि अच्छा, मुझे अभी इन चीज़ों में और एक्सप्लोर करना है और डेप्थ पानी है, या अब ये नए वेन्यूज़ हैं जो जिसके बारे में मैं और जानना चाहूँगा, या इसमें मुझे काम करने का मन है? और क्या सोचा है, आप इस बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? कैसे प्लान कर रहे हैं अगले नेक्स्ट स्टेप्स? तो सो मेधा में आने से पहले, जो मतलब 3 साल पहले, अगर मैं कहूँ 3 साल पहले, जो मेरा पूरा का पूरा काम रहा है, वो काम का एक बड़ा हिस्सा माइक्रो फाइनेंस के बाद एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन तक रहा है। एंड करिकुलम डिजाइन, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर एजुकेशन, और टू सर्टेन एक्सटेंट प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में करिकुलम बिल्ड करने को लेकर रहा है। लास्ट 3 साल के यात्रा में अगर मैं कहूँ तो दिस होल वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ हम काम करते हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैक स्पेस एंड हायर एजुकेशन, ये स्पेस के रूप में नया स्पेस था मेरे लिए। और मैं इस पे यकीन करता हूँ कि आपको लगातार पढ़ना पड़ता है ये समझने के लिए। तो कुछ चीज़ों को जिसको हम लोग अभी अ, करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी स्टेट सिस्टम में, हम तो मल्टीपल स्टेट्स में, किसी स्टेट सिस्टम में काम करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे एक चीज़ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अनुभव ड्यूरिंग द कोर्स जरूर मिले, जिसको एनईपी इंटर्नशिप भी कहती है, या पॉलिटेक्निक में उसको हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं। हम्म। फ्रेमवर्क के अंदर है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा नहीं चलता। तो हर स्टूडेंट को ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का एक बेहतर मौका मिले, जहां पर उसको मतलब एक उसको बेहतर रूप से ट्रीट किया जाए, बोथ बाय द कॉलेज, बाय द एम्प्लॉयर, और डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ये प्रॉपरली हो। और मुझे लगता है कि मैं अगले 3 से 5 साल तो इसमें देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्टूडेंट को
उसके करियर के इनिशियल टाइम में ही उसके काम को डिग्निटी से हम नहीं देख पा रहे हैं, और खुद तो वो खुद कैसे देख पाएगा? पहला प्रश्न तो ये, जो हम नहीं देख पा रहे हैं राइट। और ये मुश्किल काम है। तो इस एक चीज को लेकर मुझे लगता है कि मैं 3 से 5 साल तो यहाँ पे देने वाला हूँ इस काम को लेकर। अब उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन बदल सकते हैं, देखिए एजेंडा नहीं बदल सकते, तो ये एजेंडा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, समझ ये बन रही है 20 साल काम करते करते, क्योंकि काम की शुरुआत में मैं कहूँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के दौरान मेरा इनिशियल काम तो लिटरेसी पे रहा लैंग्वेज के अंदर, और अभी वो 20 साल में वो स्टूडेंट भी यहाँ पहुंच गया कि वो हायर एजुकेशन में है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस इस स्पेस के अंदर, जिसको हम वोकेशनल, टेक्निकल और हायर एजुकेशन का स्पेस कहते हैं, तो बेहतर रूप से करियर अवेयर, करियर प्रिपेयर स्टूडेंट कैसे हो। और जब मैं करियर प्रिपेयर कह रहा हूँ, तो हर स्टूडेंट के पास एक सीवी हो जो वो खुद बना रहा हो, चैट जीपीटी से ना बनवा रहा हो, एक दुकान पे जाकर ना बना, खुद बना रहा हो। ये बनाने की एबिलिटी तो होनी चाहिए हर स्टूडेंट को। ये पता हो कि अगले 2-3 साल तक, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा, मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। वो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो सकती है जहां मैं जा सकता हूँ, और अगर मुझे नहीं जाना है तो भी वो क्लियर हो कि मुझे नहीं जाना है। ये बेसिक लेवल ऑफ क्लियरिटी तो इंस्टीट्यूशंस को उसको देनी होगी। एंड हाउ वी कैन हेल्प दीज इंस्टीट्यूशंस टू प्रिपेयर स्टूडेंट, टू इक्विप दीज स्टूडेंट्स फॉर दैट बेसिक काइंड ऑफ एबिलिटी। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। और एक तीसरा काम जो मैं करना चाहता हूँ फंडामेंटली, कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स से डिसएग्री होकर कोई करियर बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ बैठ के या मेरे दोस्तों के बैठ के बात कर सकूं कि देखो यार, मैं ये करने जा रहा हूँ और ये करियर ये है, इससे ये होता है। मैं बता पाऊँ और उनकी सुन पाऊँ, और फिर डिसीजन भी ले पाऊँ। तो जो बेसिक एजेंसी की चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें मैं अगले 5 साल तक करना चाहता हूँ। 5 साल के बाद क्या, शायद अभी विजुलाइज नहीं की, बट राइट। 5 साल तो यहाँ देने, इन चीज़ों को लेकर देने वाला हूँ। एंड आज की तारीख में आप हमारे यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यंगस्टर्स को देखते हैं। हमारे जो स्किलिंग वाले प्रोग्राम्स हैं वो अभी तक उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए हैं? उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर्स? देखिए, तो मैंने जो आपको उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक समय में हुआ ऐसा है कि स्किलिंग को बहुत शॉर्ट टर्म पीस मिल अप्रोच के रूप में देखा गया है। और उसका देखिए फायदा भी, उसका नुकसान भी है। उसका फायदा ये है कि शायद लोगों ने थोड़ा बड़ा कुछ सीख लिया हो और कुछ शॉर्ट टर्म करने भी लगे हों। इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन है, कोई भी ऐसा कोर्स पॉसिबल है शायद, ठीक है। पर मेरा अपना मानना है कि गहराई तो उस लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट से ही आती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं करोगे तो क्रिएटिव बनती नहीं है। तो स्किलिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे हैं एक समय के बाद कि उसकी बहार सी आ गई, और उसको फिर फाइनेंसेस, सब्सिडीज के साथ मल्टीपल काइंड ऑफ पॉलिसीज के साथ अलाइन कर दिया गया, हम्म। और फिर उसमें भीड़ आ गई। तो एक्चुअली स्किलिंग तो हुई नहीं बिकॉज ऑफ दैट। वो एक बड़ा कारण रहा है उसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के रूप में देखना। कोई ये भी कह सकता है कि क्या ये इतना लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि 1 साल का या 2 साल का हो? तो अगर वो राइट नहीं है तो लेट्स सिट टुगेदर एंड टॉक कि कितना होना चाहिए। पर दोनों फिल्म्स नहीं चल सकते इस कंट्री में ना। राइट। आपके पास एक इलेक्ट्रिशियन ऐसा है जो उस कोर्स को 2 साल में सीख रहा है, एक ऐसा है जो 3 महीने में सीख रहा है। आपको बुलाना होगा तो किसको बुलाओ? कौन अधिक जानेगा? और किसका करियर कैसे बनेगा? और फिर आप 2 साल में 8 3 महीने की कोर्स में आपने लोगों को निकाल दिया, तो फिर बहुत सारे पॉलिसी लेवल पे भी चीजों को स्किलिंग के लिए बेहतर करने की जरूरत है। और इंस्टीट्यूशंस को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत, अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है।
और स्टेट्स कोशिश कर रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा स्टेट्स कोशिश नहीं कर रही हैं, बट और अधिक कोशिश करने की जरूरत है। Right. Great. Thank you, Saurabh. Thank you for your time. My final question आपके लिए है, what makes you happy nowadays? सो जब मैं फील्ड में जा रहा होता हूँ और बहुत सारी लड़कियों से मिलना होता है जो आईटीआई में है, पॉलिटेक्निक में या हायर में है, और वो अगर ये शेयर करती हैं कि अ, कुछ ऐसा हो रहा है मेरे कॉलेज में जो मुझे ये मोटिवेट कर रहा है कि मैं रोज कॉलेज आ पाऊँ, इन सब के बावजूद कि मल्टीपल तरह की दिक्कतें हैं जिंदगी में, फाइनेंस की, मतलब मेरे पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर हैं और मेरे को 50 फुट रहना पड़ता है, पर मैं आ रही हूँ क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे जो मुझे मोटिवेट करता है रोज आने के लिए। तो ये इस तरह की कहानियां सुन के मुझे खुशी होती है। और वापस जब मैं आता हूँ तो मेरी बेटी है 11 साल की, उससे बात करके बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे और नए तरह के प्रश्न करनी होती है, जिन जिसके प्रश्न बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट तरह की डिस्कोर्सेज होते हैं हमारे। तो कई बार तो मेरे लिए दुनिया खोल रही होती है कि चीज़ों को ऐसे भी देखो। तो ये दो चीज़ें जो मुझे खुशी देती हैं, फील्ड में उनसे बात करना, घर पे आके मेरी बेटी से बात Perfect. Thank you so much for your time, Saurabh. I hope you आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, and I really enjoyed learning from you during this conversation. Thank you, Raghav, for this whole interaction and discussion. Looking forward uh, to more such uh, interactions. Yeah.